So, hello everyone. In this video, a very important topic or term of English grammar, improving English, which is active passive in English grammar, which helps you to learn after tense. I have provided you tense videos. After that, we come to active and passive voice in English grammar to improve our English. So, in this video, you will gain all about active and passive conversion. You must have the knowledge of tense before doing active passive. So you can watch our videos, link is in the description. So for active passive voice, you must know that the work is done by someone, but in this you have to do transformation or transferring the sentences. Here in active passive, you will see the objects will come first, then subjects. As example, I have drink the water. I have drunken the water. So the water is drunken by me, and इसमें प्रेजेंट पास्ट हो जाता है. बाकी सारी चीज़ें जो जो हैं इसमें, जैसे मैंने पानी पिया तो पानी मेरे द्वारा पिया गया. हिंदी में भी यही सब है. तो आइए स्क्रीन पे चलेंगे और सारा इसका जो जो कन्वर्जन है, सब्जेक्ट का कन्वर्जन, सेंटेंसेस का कन्वर्जन, इसमें जो टर्म्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें जो जो होता है चार्ट्स के थ्रू, और सारा इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एक्टिव पैसिव English grammar. So watch this video till end, subscribe for more. Hello, welcome back to this channel. I hope you all are doing well or you all are great. So in this video you will see active and passive voice are very important, a must do thing in the English grammar. So first thing we will discuss in active passive conversion, how you should do this and how you will gain a command over active passive. After learning tense, you must learn active and passive voice to brush up your English grammar. So in this video I have explained all the concepts and conversion charts, every tense to convert in the active to passive voice. Active voice all tenses, passive voice after conversion, or it is the most important thing in English grammar. Watch this video till end. I have explained all the things in detail. So let's now understand on the screen. अब आइए स्क्रीन पर समझते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, which is very important in English grammar. So let's begin our new topic, which is active and passive voice in English grammar. You all searching for this after learning tense. So let's get in English grammar, learn about everything, every concept, aspects of active and passive voice. So active and passive voice in English grammar, which is very important. So I have come up with, so what is active passive voice? Transformation of sentences in from active voice to passive voice. Useful, it is very useful for class 10th, 11th and other competitive exams as well. Voice questions comes, and in class 10th one of my student as well asked me to make video upon this, and this active passive voice will help the student of class 10th and 11th for English grammar and for competitive exams as well. So in this video we will see all the aspect concept of active and passive voice. Let's begin. So yes, what is voice? Voice क्या है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में? वॉइस होता क्या है? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. ये एक प्रकार का फॉर्म होता है वर्ब का, जो इंडिकेट करता है पर्सन और अ थिंग डज समथिंग और समथिंग हैज बीन डन टू अ पर्सन और अ थिंग. कुछ किसी इंसान को हुआ और कुछ काम हुआ, वही एक वॉइस है. ठीक है, वॉइस वो होता है जो इंडिकेट करता है पर्सन ने कुछ करा. कुछ जैसे हम कुछ कुछ करते हैं अपने लाइफ में, खाते हैं, पीते हैं, चीज़ें करते हैं, मीन्स टू से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ एग्ज़ाम लिखते हैं, ये सब वॉइस है. तो वॉइस क्या होता है? वॉइस ये थी. अब वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस व्हेन अ वर्ब फॉर्म shows that the subject has done something, it is known as active voice. जब हमें पता चलता है कि किसी वर्ब ने कुछ करा, कुछ काम हुआ, तो वो एक्टिव वॉइस है. जस्ट नॉर्मल सेंटेंसेस कुछ कुछ करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं, जो कि अभी करंट में एक्टिव है और कुछ हो रहा है. दैट अ सब्जेक्ट हैज डन समथिंग. सो अब समझते हैं एग्जाम्पल से. जैसे यहाँ पे लिखा है सिंपल सा, यू रोट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा. तो इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखने को मिला. सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है,
फिर ऑब्जेक्ट है जो कि लेटर है। सो अ पैसिव वॉइस, when a verb form shows that something has done to subject, it is known as passive voice। जब पता चलता है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ हुआ है ना। एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय यू, मीन्स कि तुम्हारे द्वारा एक लेटर लिखा गया। यू ऑल हैव हियर्ड द सॉन्ग ऑफ दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल है। सो इट इज द फनी वे। सो इन दिस यू सी द सब्जेक्ट्स कम फॉरवर्ड or objects come first, then verb, then subject. In active voice you see that subject is in beginning, but in passive voice you will see the object in the beginning, means कि किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ हुआ या किसी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया गया। तो active voice when something is done by subject or something is done to subject, but when passive voice it is like object comes first, then verb, then subject। so ये थे हमारे active passive voice। we can begin a sentence either with the subject or object, है ना। हम किसी सेंटेंस को एक सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके चीज के ऊपर कुछ हो रहा है। सब्जेक्ट कौन, जो वो कर रहा है। सो वेदर अ सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव, इसलिए हमारा सेंटेंस जो होता है या तो एक्टिव होता है या तो पैसिव होता है। you need to learn this, you need to know this, that a sentence that a subject or that has object as well। so the two types are active and passive voice। so let's come to what you must know before learning active and passive voice with example। तो क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए एक्टिव पैसिव सीखने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्टार्टिंग ऑल्सो आई टोल्ड दैट यू शुड हैव प्रॉपर और करेक्ट नॉलेज ऑफ टेंस। अगर आपने अभी तक टेंस की वीडियोस नहीं देखी, टेंस नहीं सीख रखा है, तो हमारा लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है कंप्लीट। नहीं तो आप अदर रिसोर्सेज से भी टेंस को पहले सीख लें। देन यू शुड नो मोडाल वर्ड्स, लेट का यूज पता होना चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इन्फिनिटिव्स का पता होना चाहिए, तब आप आ सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, आफ्टर टेंस यू लर्न दिस। सो इन दिस एक्टिव, देखो एक्टिव सेंटेंसेस कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मीन्स टू से किसी के द्वारा कुछ होता है तो बाय। तो ये चीजें लगती हैं। अब कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है डोंट ओपन द डोर, है ना, डोंट ओपन द डोर। सो इट इज मिस्टेकन, for this because typing speed or typing mistakes happen, so it is written poor but it is door। so active voice क्या है हमारा, don't open the door। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, यही तो कंफ्यूजन है। तो let him read the book, अब इसको पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं, this mobile is to be repaired। तो देखो इसको पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे, this mobile is being repaired। सो सबसे पहले आपको देखना है कि टेंस या किस फॉर्म में, किस टेंस में लिखा गया है हमारा एक्टिव के सेंटेंसेस। नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ लिखा आई हैव टू बॉल्स टू सेल, मीन्स आई हैव बॉल्स टू सेल। सो टू सेल आई हैव सम बॉल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा है पैसिव वॉइस में, देन क्या आ रहा है, वर्ब, देन सब्जेक्ट। किसके द्वारा हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है वो काम। तो इसमें क्या समझने को मिलता है कि सबसे पहले अगर आप एक्टिव से पैसिव में जाना चाहते हैं, सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ओके, सो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नॉर्मली, बट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता है तो सब्जेक्ट देन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो यूज दिस फॉर्मूला टू फॉर्म सेंटेंसेस। विदाउट सब्जेक्ट ऑल्सो कैन बी पैसिव सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो भी पैसिव सेंटेंस हो सकता है ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ। सो अब देखेंगे हम सब्जेक्ट का कन्वर्सेशन कैसे हो जाता है लास्ट में, जैसे ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, तो सब्जेक्ट कन्वर्जन देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। सो द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, एंड द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है।
सो पुट बाय इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। अगर आप पैसिव वॉइस लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट जो होता है किसका नाम या नाम की जगह पे यूज किया गया प्रोनाउन वर्ड, तो वो उससे पहले आपको बाय वर्ड का यूज करना है। सो ये देख सकते हैं आप चार्ट, ही का हिम, यू का यू रहता है, बी का अस हो जाता है, इनके पहले बाय लगता है, जैसे कि लेटर इज रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे हिम लगा हमारा। शी का हर हो जाता है, ये कन्वर्जन है, आप देख सकते हैं शी का हर, आई का मी, ये सब्जेक्ट होते हैं और प्रोनाउन है। ज्यादातर अब नाम होगा तो नाम ही रहेगा, बट यहाँ पे प्रोनाउंस को देखो कैसे चेंज हो जाता है, ही का हिम है ना, दे का देम, वी का आवर। सो दीज आर द कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट इन एक्टिव टू पैसिव। लेट्स कम टू थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर कन्वर्जन। कन्वर्जन करने से पहले, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने से पहले क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, वो सारी चीजें देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द थिंग्स। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। यूज बाय वर्ड मीन्स आपको बाय वर्ड का यूज करना है, क्योंकि आप बताते हैं किसके द्वारा कुछ काम हो रहा है। सो ऑब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं हमेशा। टेंस देखते हैं कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा आगे भी कि कौन से टेंस के बाद अगर एक्टिव वॉइस तुम्हारा किसी टेंस में है तो दूसरे टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा पैसिव वॉइस हमारा बनता है। तो कन्वर्जन जो होता है हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वो कैसे होता है। इफ द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज इन द इम्पेरेटिव फॉर्म टू गेट द पैसिव यूज लेट। अगर कुछ इम्पेरेटिव फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट या फिर एक्टिव वॉइस दिया गया है तो उसको पैसिव वॉइस में करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक लेट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो काम हो रहा है वो पहले आ जाना है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाना है, देन वर्ब, सो प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है ज्यादातर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। सो फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये चीज ध्यान रखना आपको अगर कन्वर्ट करना हो, ये टिप्स है। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक एम, इज, आर, है ना, कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का ले लो, वॉज वर्ब पास्ट टेंस का, विल हैव, शुड, कुड, विल। इफ द क्वेश्चन इन द एक्टिव वॉइस बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में, मीन्स टू से कह रहे हैं कि इज शी कुकिंग फूड, है ना, ऐसा कुछ आ गया, तो ये स्टार्ट किससे है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस। सो देन हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उसको बिगिन विद अ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, उसको भी हम एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, विल से स्टार्ट है, विल यू राइट अ लेटर, सो विल अ लेटर बी रिटन बाय यू। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, देन उसको कैसे हेल्पिंग वर्ब से ही उसके ही अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है। So this was helpful tips for converting active voice to passive voice. Now let's come to change conversion of tense. मैं conversion कह रहा हूँ। So अब चार्ट देख लेंगे, एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस में करना है हमें तो कौन सा सेंटेंस है तो किस सेंटेंस में हो जाएगा। सो प्रेजेंट एक्टिव पैसिव वॉइस देखो, जैसे डू डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, अब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो इज एम आर लग जाता है ना। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो अगर इसको पैसिव में करना है तो स्कूल ये हैज बीन गोन बाय हिम, मीन्स टू से इसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जैसे इज एम आर, तो इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें कि आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट एक्टिव पैसिव वॉइस का। सो कन्वर्जन चार्ट देख लो एक बार, कैसे कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अब किस में कन्वर्ट होता है। ये मैंने अपने कॉपी से फोटो क्लिक की है जब मैं पढ़ रहा था। हमारा कन्वर्टिंग द टेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, डू डज है, तो वो जब पैसिव वॉइस में जाता है तो इज एम आर यूज होते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका इज एम आर है तो उसके साथ बीइंग और लग जाता है, वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में पहले देखेंगे हैज हैव है, तो हैज बीन और हैव बीन हो जाता है पैसिव वॉइस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस है। हैज हैव बीन है तो वो हैज हैव बीन प्लस बीइंग हो जाता है
पैसिव वॉइस में। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट है तो वो एक्टिव वॉइस में डिड लगा रहता है, आई डिड नॉट वर्क, आई डिडंट ईट। सो ये सारे क्या है हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस। जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, वॉज वर हो जाता है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर है तो उसके साथ बीन लग जाता है। अगर पास्ट परफेक्ट हैड है तो उसके साथ हैड बीन हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन है तो हैड बीन प्लस बीन, है ना। अब फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल है तो विल बी हो जाता है ना। दिस वर्क विल बी डन बाय हिम। सो ये क्या है हमारा एक कन्वर्जन है टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी से स्टार्ट होता है, उसके साथ क्या लग जाता है, विल बी प्लस बीइंग, है ना। बहुत इजी है। तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव से शुरू होता है तो उसको जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो वो विल हैव बीन हो जाता है। देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट वन है, जिसमें अगर आपका स्टार्ट होता है ये विल हैव बीन से, सो इसको कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव वॉइस में विल हैव बीन प्लस बीइंग। तो ये क्या था हमारा चेंज और कन्वर्जन था टेंस का और सब्जेक्ट वगैरह का। तो अब लेट्स कम टू एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कैसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि पद्मा सिंग्स अ सॉन्ग, सो what is there, a work, a singing work is done by Padma. So what happens, object is song, so song will come first in passive voice. Let's see conversion. So a song is sung by Padma, so it is the passive voice. He plays a football, means वो फुटबॉल खेलता है, तो अब फुटबॉल इसके द्वारा खेला जाता है तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था बट पास्ट में हो गया, है ना। तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ऐसे करके हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है। जैसे लिखा है दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, आप तो सब्जेक्ट हो, आप बताएंगे कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो यू विल बी इन्फॉर्म इट अबाउट इट बाय देम, मीन्स टू से अब आपके द्वारा इस चीज को किया जाएगा। रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, रेखा कुछ काम कर रही थी। अब वॉज वर्ब का बीइंग हो जाता है, तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय रेखा। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपसे सुबह से पूछ रहा हूँ। सो आप मेरे द्वारा सुबह से पूछे जा रहे हैं, है ना। यू हैव बीन आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ये। सो और भी एग्जांपल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं और आगे भी देखोगे, सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस और थोड़े बहुत मैं अपने कॉपी में से ही आपको फोटो से क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, आई हैव वॉच्ड द दिस मूवी, है ना। तो दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी, यहाँ पे क्या है हमारा आई हैव, तो ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको हैज हैव से हैज हैव बीन हो गया खाली, तो दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, वो बीन लग जाता है, परफेक्ट टेंस था तो कन्वर्जन आप देख ही रहे। सो व्हाई डिड ही कॉल यू, उसने आपको क्यों बुलाया। सो डिड वॉज वर ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, सो वाई वर यू अब पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता है अगर ये पैसिव वॉइस में जाता है। सो वाई वर यू कॉल्ड बाय हिम, मीन्स आपको उसने क्यों बुलाया और उसके द्वारा आप क्यों बुलाए गए, ये क्या है हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो हाउ मच डज ही लव हिज फादर, है ना, वो अपने फादर को कितना प्यार करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखो कंटिन्यूस में हो जाएगा, हाउ मच इज ही हिज लव बाय हिम, है ना, उसके द्वारा कितना प्यार किया जाता है उसे। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो दे लुक्ड आफ्टर द गर्ल, मीन्स लड़की को उनके बाद देखा गया। सो द गर्ल वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम, ये एग्जाम्पल है, ये बुक का है ना। वी कॉल्ड इन द मैकेनिक, है ना, हमने मैकेनिक बुलाया, तो मैकेनिक हमारे द्वारा बुलाया गया, द मैकेनिक वॉज कॉल्ड बाय अस, है ना। आई सेंट फॉर द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर के पास भेजा, सो द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर बाय मी। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए, है ना, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। पैसिव वॉइस में शट द डोर, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, सो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। हेल्प द पुअर, सो यू आर एडवाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्प करने में एडवाइस दे रहे हैं, उसमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो पूरा लिखा जाता है प्रॉपरली। बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, यू आर एडवाइज्ड, यहाँ पे हम एडवाइस ही दे रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स।
pay the money before April. You are requested to pay the money before April. Apply for leave. You are advised to apply for leave. These are the examples. अब कुछ आपको एक्सरसाइज करने हैं, जैसे कि आपको एक प्रैक्टिस के लिए जैसे आपको बताना है ऑल द बॉयज लाफ्ड एट द पुअर बैगर. इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस. सो द पुअर बैगर वाज लाफ्ड बाय ऑल द बॉयज, है ना, बीइंग लाफ्ड बाय ऑल द बॉयज. वी शुड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. बहुत आसान है, बहुत ही यहाँ पे इजी है. क्या दे रखा है, वी शुड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. इसका पैसिव वॉइस क्या होगा. सो आप बनाइएगा, इसको एग्जाम्पल कमेंट में करिएगा. लेट्स कम टू एक्सरसाइज और टास्क टू डू. इफ यू वांट टू लर्न, आपको कुछ करना है, कमेंट सेक्शन में जा करके आपको इन सेंटेंसेस के जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ उनका पैसिव वॉइस लिखना है. बहुत इजी होगा. द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. सो इसका बताइएगा आप टेंस के ध्यान रखते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हुए. द चोयर रियली एंजॉयज द पीस. अ फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयड द होल suburb. The whole suburb was destroyed by a forest fire. यहाँ पे आपको दे रखा है आंसर, थोड़ा देख लो और एग्जाम्पल वगैरह देख लो. So then you can write these sentences into passive voice. This was the thing that you must follow the chart of converting the tenses, and you should know all the rules like object will come first, then it is done by some subject and subject changes. So these are the concepts you need to keep in mind, and write the comments in about the passive voice of these sentences shown on your screen. So आपको ये एक्सरसाइज करना है. ऑल द बॉयज आपको पहले दिखा दिया मैंने. You have to write the passive voice of these sentences. So active voice में ये सिंपल नॉर्मली है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. वही ऑब्जेक्ट पहले रखना है, देन आपको वर्ब रखना है, देन सब्जेक्ट को लास्ट में बाय लगा करके रखना है. उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस होते चले जाएंगे. सो आई रिमेंबर, यस, टुडे इज होली. हैप्पी होली 2021. Keep learning. It was Holi special video. So subscribe this channel. Keep learning, keep supporting, keep loving. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you so much.